Hello everyone, welcome to FT Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs from June 8th to June of 14th. So let's begin with the first topic. So the first topic of our discussion is the Chenab River Bridge. So as you know, recently the Prime Minister inaugurated the Chenab Railway Bridge. Now this is the highest railway bridge in the world. So it is a historic milestone in India's infrastructure journey. So let's discuss the features of this railway bridge. First of all, where is it located? So it is located in Jammu and Kashmir, the Raisi district of Jammu and Kashmir, and it has been built at a cost of over 1400 crore rupees and on the Chenab river. So Chenab bridge, and the name itself signifies the river over which it has been built, and it is a vital part of the USBRL. Now what is this? Now this USBRL is the Udhampur Srinagar Baramulla railway line, right? So it is aimed at connecting the Kashmir Valley to the rest of the country, and it is the tallest railway arch bridge. So as you can see, there is a arch. ठीक है, ये जो है चीज़, ये आर्च है. So this is the tallest railway arch bridge at the global level, and it is even taller than the Eiffel Tower. So 35 meters more than the Eiffel Tower. Now what is the significance of this bridge? Now this bridge, it is designed to last over 120 years. तो 120 साल से प्लस इसका लाइफ स्पैन रहेगा. ठीक है, एंड इट कैन विथस्टैंड विंड्स with a speed above 266 किलोमीटर्स पर आवर, अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 8 प्लस. ठीक है, वो मैग्नीट्यूड के भी अर्थक्वेक ये भी विथस्टैंड कर सकती है, एंड एक्सप्लोजन्स इक्वलेंट टू 40 टन्स ऑफ TNT. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो डिज़ाइन टू एंड्योर द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस विच आर प्रेजेंट इन हिमालयाज. फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर्स एज लो एज -20 डिग्री सेल्सियस, तो उसको भी ये विथस्टैंड कर सकती है. Now if we talk about the project execution, so this project, it was managed by the Konkan Railway Corporation. ठीक है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने मैनेज किया था, एंड इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर VSL इंडिया, एंड देयर इज अ साउथ कोरियन फर्म अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग. सो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दिस ब्रिज वर सोर्स्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एज वेल. तो फॉर एग्जांपल स्विस फर्म मैगेबा, इट प्रोवाइडेड द बेयरिंग्स फॉर द ब्रिज. ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टील सप्लाई किया था, एंड द quantity of steel, if we talk about, it is more than 28,000 metric tons, right? So this is what I wanted to discuss regarding this bridge. So more of from your prelims point of view, from mains a question can come on something related to bridges, the design of the bridges. So it is my suggestion to you people to just go through the various type of bridges, right? Next, so the next topic is census 2027. It is more than a head count. Now what does this mean? ठीक है, as we all know that census is a exercise, enumeration exercise which is held every after 10 years. तो लास्ट हमारी 2011 में हुई थी, and it was due in 21. So because of reasons like COVID, it could not be held. तो अब गवर्नमेंट ने in the first week of the June, it has said कि 2027 तक ये एक्सरसाइज इट विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, सो दीज आर द डिटेल्स. नाउ सेंसस इज जस्ट नॉट अ एन्यूमरेशन. ठीक है, इट इज़ नॉट मेयरली अ डेमोग्राफिक प्रोसेस, इट इज़ मोर देन दैट. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट इज़ मोर देन दैट. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन what else the census signifies. So first of all, related to political demography and parliamentary representation. So as we all know that article 81 of the constitution, article 81 of the constitution, now it mandates that the parliamentary seats will be redistributed after the first census following 2026. तो अब फर्स्ट सेंसस कौन सा होने वाला आफ्टर 2026? सो ये 2027 वाला. नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि
what if the population size is the sole criteria for political representation? तो delimitation उसके basis पे होगा. तो अब जो states which have higher birth rates but slower economic growth, especially the states in your northern India, central India, they stand to gain more seats. ठीक है. while the southern states and the western states which have invested in population control measures, economic development etc, they will lose their influence, क्योंकि population ही criteria है, तो कम population तो कम representation. so this is a big question. ठीक है. so एक paradox है, this is a paradox, right? so which has to be solved. Second, caste enumeration, social politics and the federal compact and revenue sharing. अब इसके अंदर we know that this census 2027, it is going to be a comprehensive caste census, the first one since 1931. तो 1931 में आपको full caste census हुआ था. तो अब हम दोबारा caste census करेंगे beyond the scheduled caste and the scheduled tribes. तो ये एक obviously it is expected to dramatically alter the political discourse. ठीक है. we all know that the caste identities, they are long embedded in India social fabric. ठीक है. तो अब जब caste census conduct होगा, ठीक है, this is going to be even more central, this caste element, it is going to be even more central to the resource claims and political mobilization in India now. कैसे? अभी आपको पता है एक चीज़, रिजर्वेशन. ठीक है. रिजर्वेशन 50% सीलिंग. ठीक है. तो कास्ट सेंसस के बाद इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन होगा. देन 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. ठीक है. वो आ जाएगा केस. फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस. सो ऑल दीज फैक्टर्स, they are going to increase the complexity of the situation, right? So this is how things are going to be much more complex. Next, financial commission and revenue sharing. We all know that the 16th finance commission, it is expected to submit its recommendations in October 2025, और उन recommendations के basis पे the formula for revenue sharing between center and states will be decided. अब जैसे मैंने पहले बताया था, many states have expressed their dissatisfaction जो previous commissions ने criteria use किया, that has more of, they favor more of population size over the developmental performance. Now the question again arises whether this population heavy but economically weaker states, should they receive a higher proportion of the shared resources, the revenue. तो ये दोबारा ये क्वेश्चन उठता है. yes. एंड लास्टली पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़. तो अब जब सेंसस डाटा होगा न्यू वाला पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, तो ऑब्वियसली दीज पार्टीज़, दे आर गोइंग टू यूज़ इट एज अ टूल. ठीक है. इलेक्टोरल टूल की तरह यूज़ होगा. सो दिस इज़ हाउ the caste census, this census of 27 is not just a decadal statistical exercise. It is much more than that, and it is going to reconfigure how the people in India, they are counted, represented, governed, etc. ठीक है. So more of a analytical type of discussion we have just done on the aspects related to census, right? Next. So Axiom 4 mission. So as we all know that one of the Indians, right, Captain Subhanshu Shukla, so he is part of the 4-member crew that is going to be going to the International Space Station using this Axiom 4 mission. ठीक है. So the other 3 crew members are Peggy Whitson, Slavoj Uznansky and Tibor Kopu from various countries like Hungary, Poland, etc. ठीक है. अब ये जो Axiom 4 मिशन है, फर्स्ट थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट इट इज़ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट. कोई ये गवर्नमेंट स्पेस फ्लाइट नहीं है. एक कंपनी है Axiom स्पेस विच इज़ US बेस्ड. तो उनके बेसिस पे वो लेके जाएंगे क्रू मेंबर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. 14 डे का ये मिशन है. ठीक है. एंड एज द नेम सजेस्ट, ये 4th मिशन है. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट मिशन ऑफ द Axiom. ठीक है. तो Axiom सीरीज़ में ये 4th मिशन है.
एंड इट विल बी द लॉन्च व्हीकल इज़ द स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उनका फैल्कन 9, ठीक है. एंड दिस मिशन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद नासा, ठीक है. इसरो इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड, इसरो इज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड बिकॉज हमारे क्रू मेंबर जो इन्वॉल्व हैं ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन, ठीक है. अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? सो as I have told you, NASA is involved, ISRO is involved, so there is a collaboration between the two space agencies. Also, this particular Axiom 4 mission, it provides ISRO an opportunity to conduct certain exercises, experiments for its Gaganyaan mission, ठीक है. तो क्या है वो चार? फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोग्रेविटी. सो माइक्रोग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट रहता है मसल्स के ऊपर, मसल्स डिसफंक्शनिंग के ऊपर, तो वो देख सकते हैं. सेकंड, जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन का यूज़ स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी में, और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ह्यूमन कॉग्निटिव फैकल्टी के ऊपर, विजन के ऊपर. सेकंड वन इज़ दिस. थर्ड, seed growth in space. There also 6 varieties of crops will be grown in space conditions, ठीक है. फोर्थ, tardigrade survival studies. So what is tardigrade? So tardigrade, if you have read, these are the microscopic creatures which can endure extreme environments. तो ये हमें यूज़फुल इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स इन द स्पेस के बारे में, राइट. सो अ लिटिल बिट अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. सो दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्पेस ISS, so it is orbiting around the earth at an altitude of 430 kilometers. Now it completes 16 orbits on a daily basis. 16 orbits रहती हैं और हर ऑर्बिट 90 मिनट्स की होती है. 90 मिनट्स, ठीक है. So 90 minutes is roughly around 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड रहती है, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर ISS इट स्पैन्स अराउंड 109 मीटर्स, ठीक है. 109 मीटर्स इज़ ऑलमोस्ट अ फुटबॉल फील्ड साइज, राइट. सो ये जर्नी कब बिगन हुई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की? 1998 में, व्हेन आपका जो रशिया था इट सेंट इट्स मॉड्यूल. तो रशिया ने पहला मॉड्यूल लॉन्च किया था. उसके बाद सब्सिक्वेंटली दिस वाज इन नवंबर, इन दिसंबर द US एडेड इट्स मॉड्यूल, ठीक है. तो अब रशिया भी इन्वॉल्व है, आपका नासा भी हो गया, तो ESA इज़ ऑल्सो देयर, JAXA इज़ ऑल्सो देयर एंड CSA इज़ ऑल्सो देयर. सो नंबर ऑफ स्पेस एजेंसीज नाउ दे आर कोलैबोरेटिंग इन दिस स्पेस स्टेशन, राइट. तो हमारा सिग्निफिकेंस मोस्टली इस मिशन के थ्रू इज़ ऑन द गगनयान. नेक्स्ट, सो इंडियाज़ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट. तो अभी क्या है कि आपने UNFPA ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के से ये बोला है कि द इंडियाज़ पॉपुलेशन इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव रीच्ड 146 करोड़ 146.39 CR हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है बाय अप्रैल 25. So we have touched this, and by 2070 our population will peak and it will be 170 CR, ठीक है. तो 2000 and in the next 40 years, so our population will reach that 170 CR numbers, and it will be the peak of our population. So this is the first फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी. द सेकेंड इज़ दैट आवर फर्टिलिटी रेट, ठीक है, जो आपको पता होगा देयर इज़ समथिंग नोन एज द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, तो वो 2.1 होता है. तो हमारा जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है नाउ दैट स्टैंड्स एट 1.9. सो इट हैज़ रिड्यूस्ड. सो 1.9 इज़ द फर्टिलिटी रेट नाउ. एंड if we talk in terms of urban and rural areas, तो urban fertility is at 1.6 and rural is at 2.1. तो जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है NFHS 5 जो 2022 में, उसके हिसाब से हमारा फर्टिलिटी रेट 2.0 था एवरेज, ठीक है. रूरल का था 2.1, अर्बन का 1.6. और अगर हम स्टेट वाइज बात करें फर्टिलिटी रेट्स की, तो स्टिल देयर आर सर्टन स्टेट्स विच आर अबव द एवरेज,
ठीक है। तो जैसे बिहार हो गया 2.98, मेघालय 2.9, यूपी 2.35, झारखंड 2.26. सो दीज स्टेट्स हैव fertility rates above the average. Now other the report also mentions the reasons why the Indians now are opting for fewer children. ठीक है, तो क्या रीजंस हैं जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? सो वन ऑफ देम इज़ द फाइनेंशियल स्ट्रेन. ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेन. द सेकंड वन इज़ द जॉब इनसिक्योरिटी. तो इकोनॉमिक challenges, unemployment, these are the various factors now which are influencing, right? These are mostly related to economic aspects. और अगर हम बात करें सोशल एंड फैमिली रिलेटेड आस्पेक्ट्स की, तो फैमिली प्रेशर हुआ, राइट? लैक ऑफ पार्टनर बोल रहा है कि हमें नहीं अभी करना कोई भी चाइल्ड, तो वो एक रीज़न रहता है. लैक ऑफ सपोर्ट इन द हाउस होल्ड responsibilities, etc. These are also influencing the reproductive choices. Now the other thing is important thing is regarding the demographic dividend. तो अगर हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, सो वी आर एट प्रेजेंट एडवांटेज है. हमें कैसे एडवांटेज है? बिकॉज 68% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ इन द वर्किंग एज. तो वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है 15 to 64 ईयर्स के बीच में 68% ऑफ द पॉपुलेशन है, और एल्डरली दे आर अराउंड 7%. ठीक है, बट द क्वेश्चनरी रिमार्क इज़ दिस कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब इंक्रीज़ हो रही है. सो इट इज़ मोर देन 70 फॉर बोथ वुमेन एंड मैन. तो एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज इन द कमिंग डिकेड्स. तो ऑब्वियसली अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, एंड द अदर पॉपुलेशन, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वो वहाँ पर वी विल बी सीइंग अ डिक्लाइन. तो ऐसे में देयर इज़ एन important learning is that we need to shift our focus on strategic investment in the healthcare sector, in the social security sector. We need to tweak our workforce policies so that we ensure a sustainable economic development, economic growth, right? तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है. तो हमारा जो issue है, that is not our population. So our issue is the gap between number one the reproductive intentions and the outcomes, and number two to ensure कि जो हमारा अब एजिंग पॉपुलेशन होगा और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम अभी एडवांटेज जो हमें मिल रहा है वो डिक्लाइन पे होगा, तो हम उसको कैसे एड्रेस कर पाते हैं. तो दोज आर द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फॉर अस. नेक्स्ट, सो दिस वॉज अ न्यूज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च. तो यहाँ पर क्या हुआ है? सो द गवर्नमेंट इट हैज़ अमेंडेड द जनरल फाइनेंस रूल्स सो दैट अब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई एम अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, आई एम प्रोक्योरिंग सर्टन इक्विपमेंट. ठीक है, तो मुझे अभी 500 रुपीज़ तक का, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा था अगर कोई चीज़ आपको 500 रुपीज़ की लेनी है तो आप खुद से ले सकते हो. अगर उससे ज़्यादा की लेनी है दैन यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टन प्रोसेस. ठीक है, तो देयर वर सर्टन लिमिट्स. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, द गवर्नमेंट हैज़ ईज्ड दोज लिमिट्स. तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द डिलेज. जो प्रोसीजरल डिलेज हो रहे थे दैट विल गेट डिक्रीज. सेकेंडली इट विल लीड टू इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस. ऑटोनॉमी इंक्रीज होगी एंड इट विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड इनोवेशन. ठीक है, तो इनोवेशन की में, तो ये तीनों चीज़ें दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च. अब यहाँ पर कुछ लिमिट्स हैं. दीज आर फैक्चुअल डिटेल्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अब यूपीएससी में उस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो जस्ट गो थ्रू दैम. दैट फॉर एग्जांपल द प्रोक्योरमेंट विदाउट कोटेशन, द लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹1 लाख to 2 लाख. ठीक है, similarly committee limit has been increased to 25 lakhs and so on. Now there are other reforms as well. पहले क्या था कि there was a mandatory clause कि जो procurement होगा that will take place from GEM, the government e-marketplace, और आपको जो made in India products हैं, the cheapest made in India products हैं, उनको you have to give preference. But what problem the scientists face were that they reported there were quality issues. कि आपकी इस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की वजह से हमें क्वालिटी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. वी ऑल्सो हैव टू फेस डिलेज
ठीक है. एंड देर इज़ लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता. एंड देर आर ऑल्सो लिमिटेड हाई ग्रेड साइंटिफिक वेंडर्स अवेलेबल ऑन GM. तो उस वजह से नाउ दे हैव रिवाइज दिस रूल ऑल्सो एंड दे हैव सेड दैट द डायरेक्टर्स, द वाइस चांसलर्स एंड चांसलर्स, दे आर नाउ परमिटेड टू procure non GM equipments, right, and consumables from other places as well, right. So more of prelims point of view, and if question comes in mains related to scientific research, so you can drop 1 or 2 lines from this. अर्बन कंज्यूमर सेंटीमेंट इन इंडिया. सो बेसिकली जो आपका RBI होता है, ठीक है, वो ऑन अ बाई मंथ इट कंडक्ट्स अ बाई मंथली एक्सरसाइज कंडक्ट करता है टू कैप्चर व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ द हाउस होल्ड्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्फ्लेशन, स्पेंडिंग एक्सेट्रा. तो May 2025 में the RBI they collected around insights from around 6,000 people from across 19 cities. Now important thing, first thing in this case is that पहले इसका नाम होता था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, CCS, ठीक है. अब RBI ने इसको UCCS और RCCS, तो अर्बन का अलग हो गया, रूरल का अलग हो गया. तो अब हम अभी जो बात करें दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन नाउ, ठीक है. तो अब इसमें 2 की इंडिसेस होते हैं. वन इज़ योर करंट सिचुएशन इंडेक्स. करंट सिचुएशन इंडेक्स मीन्स कि अभी एट प्रेजेंट जो हाउस होल्ड्स हैं वो इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और दूसरा होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कि फ्यूचर में कैसे देखते हैं. तो ये अभी क्या हुआ है कि जो करंट की अगर हम बात करें तो उस इंडेक्स की वैल्यू इट हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 95.5 इन मार्च, ठीक है, बाई मंथली है तो मार्च में हुआ था, टू 95.4 इन योर मे. सो जो परसेप्शन है दैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स पेसिमिज्म, ठीक है. और इट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस इंडिसी अगर 100 से कम है तो वो पेसिमिस्टिक आउटलुक ही दिखाता है, ठीक है. सेकेंड इज़ द FEI इट हैज़ राइजन फ्रॉम 122.4 टू 123.4. तो वहाँ पर ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, ग्रेटर देन 100 भी है और वैल्यू इंक्रीज़ भी कर रही है. और अगर हम अर्बन वर्सेस रूरल की बात करें तो रूरल पीपल दे आर मोर ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है. तो अगर रूरल CSI की बात करें वो स्टिल 100 के अराउंड है, एंड द FEI इज़ 126.2 एंड दैट इज़ ड्यू टू गुड मानसून कंडीशंस एंड एज वेल एज द फूड प्राइस ईजिंग, राइट. So all these details you can drop while writing answers for your GS3 paper as well as for your essays as well. 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम. तो अभी क्या है कि दिस 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम वाज हेल्ड इन योर ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील, ठीक है. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है. नंबर 1 जो 12th की चेयरमैनशिप वो इंडिया के पास है. 2026 में इंडिया विल बी प्रेसाइडिंग ओवर, ठीक है. सो दिस इज़ वन इम्पोर्टेंस. और दूसरा आपके प्रीलिम्स 2025 में भी इस ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था. सो द फर्स्ट फोरम इट वाज हेल्ड इन 2015 इन मॉस्को, ठीक है. इंडिया में फर्स्ट टाइम 2016 में हेल्ड हुआ था, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग यू शुड नो ब्रिक्स के बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन. तो इनिशियली द ब्रिक्स कंट्रीज, वी ऑल नो दैट दिस पर्टिकुलर टर्म it was coined by one Goldman Sachs economist Jim O'Neill in 2001. तो तब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे, ठीक है. साउथ अफ्रीका इट ज्वाइंड दिस ग्रुपिंग लेटर इन 2010. तो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या था. इट वाज बेसिकली टू ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज टू चैलेंज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ द वेल्दियर नेशंस, स्पेशली. और जो आपका वेस्टर्न यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, तो उसको हमें चैलेंज करना था. एंड जो अब इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रुप में नए मेंबर्स आए हैं. तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया, UAE, इजिप्ट दे ज्वाइंड इन 2024 एंड द लेटेस्ट वन 2025 जनवरी दैट इज़ इंडोनेशिया, ठीक है. ये एक प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट भी थी इसके ऊपर, इंडोनेशिया, राइट. सो जस्ट फैक्चुअल एंड डिटेल्स, नथिंग एल्स.
नेक्स्ट इज़ योर इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप. अब यहाँ पर क्या है, नाउ देर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन श्रीनगर बाय द नेम ऑफ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी. नाउ दे हैव सक्सेसफुली बर्थ इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप विच इज़ अ कश्मीर मेरिनो ब्रीड. अब पहले ब्रीड की बात करते हैं. तो ये कश्मीर जो मेरिनो ब्रीड है, नाउ इट इज़ अ क्रॉस ब्रीड 1960s में. We all know that there are certain local breeds like your Gaddi breed, Bakarwal breed, which are local breeds in Kashmir, and these were crossbred with your exotic breeds like Australian Merino. ठीक है, तो ये वाली ब्रीड निकल के आई थी क्रॉस ब्रीडिंग के बाद ड्यूरिंग द 1960s इन जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ. तो अब ये ब्रीड की क्या एडवांटेजेस हैं कश्मीर मरीनो की. नंबर वन, जो हार्श कंडीशंस हैं जम्मू कश्मीर की, उसको विथस्टैंड कर सकती है. नंबर टू, इट्स प्रोडक्टिविटी की बात करें, so it is 3 to 4 times more productive than your local breeds in terms of meat production as well as wool production. तो दोनों में इट इज़ अ डुअल पर्पस ब्रीड. तो मीट भी ज़्यादा देती है, वूल भी ज़्यादा देती है. अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, अब जो इनिशियल जीन एडिटिंग का जो अब एस्पेक्ट आता है, वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ जीन एडिटिंग में क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म का जीनोम होता है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस को दे अल्टर और मॉडिफाई यूजिंग वेरियस टेक्निक्स लाइक CRISPR-Cas9. ठीक है, तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक जीन है बाय द नेम ऑफ मायोस्टेटिन. ठीक है, इसको किया है, इस जीन को दे हैव अल्टर्ड एंड इट इज़ रिलेटेड टू मीट. तो अब क्या हो गया इस जीन की वजह से, जो मसल मास है, जो शिप का मसल मास है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 30%. ठीक है, तो 30% से इंक्रीज़ कर दिया है, तो एज अ रिज़ल्ट द मीट प्रोडक्शन विल बी मोर, राइट. तो दिस इज़ द मायोस्टेटिन जीन. अब इससे सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, नंबर वन, एक तो मीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा. ठीक है, ये तो हमारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गया. दूसरा, अब बाकी एरियाज़ में हम जो जीन एडिटिंग कर रहे हैं, से इन क्रॉप्स लाइक राइस एक्सेट्रा, उसमें हेल्प मिलेगी. नाउ साइंटिस्ट्स आर ऑल्सो लुकिंग एट सम अदर जीन जिसका नाम है FGF5 जीन, और ये रिलेटेड है वूल प्रोडक्शन से रिलेटेड. तो ये इम्प्रूव करेगा वूल की क्वालिटी को. सो साइंटिस्ट इसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं ऑब्वियसली, एंड इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट, डिजीज रेजिस्टेंट लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस. So if a question comes on the use of gene editing techniques, you can give this as an example as well. ठीक है, so cloning is a separate thing and gene editing is a separate thing. Please note that, right? Next, हींग. ठीक है, तो अभी जो हमारा CSIR है, so they have recently reported that हींग can be successfully cultivated in India. ठीक है, तो हींग इन दिस इज रिलेटेड टू फेरुला स्पीशीज़. ठीक है, फेरुला स्पीशीज़ के अंडर आता है, एंड इसका पूरा नाम है फेरुला एसाफियोटिडा. ठीक है, सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस हींग के बारे में लेट्स डिस्कस इट्स फीचर्स. व्हाट आर इट्स फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ पेरिनियल प्लांट एंड इट टेक्स मोर देन 5 years टू मैच्योर. 5 साल लगते हैं मैच्योरिटी में. एंड इट इज़ नेटिव टू द कोल्ड एंड एरिड एनवायरनमेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान. ठीक है, तो ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे ये पाया जाता है. एंड इंडिया इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंडेंट, इंपोर्ट करता है 100% फ्रॉम दीज कंट्रीज़. ठीक है, तो क्लाइमेट नीड्स के बारे में बात करें तो इट रिक्वायर्स सैंडी वेल ड्रेन्ड सॉइल. इट रिक्वायर्स अ रेनफॉल ऑफ 200 to 300 mm एंड टेम्परेचर ऑफ 10 to 20 degrees Celsius, दो इट कैन टॉलरेट -4 एज वेल एज 40 degrees Celsius. ठीक है, बट ये है कि इट बिकम्स डोरमेंट इन दीज कंडीशंस. जब बहुत ही ड्राई हो या बहुत कोल्ड कंडीशंस हो, दीज प्लांट्स दे कैन अडेप्ट, दे बिकम डोरमेंट, राइट. नाउ ये जो फेरुला है, इसकी ना मोर देन 130+ स्पीशीज़ प्रेजेंट है ग्लोबली, बट
ओनली फेरुला एसोफिएटिडा जो कि आपका हींग हुआ है, दैट इज़ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़। ठीक है, हमारे इंडिया में फेरुला की बाकी स्पीशीज़ मिलती हैं, येस इंडिया हैज़ फेरुला की अदर स्पीशीज़, बट दिस फेरुला एसोफियोटिडा इट इज़ नॉट प्रेजेंट, राइट। जैसे कि फेरुला जैक्सकीना, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न हिमालयाज, फेरुला नार्थेक्स कश्मीर लद्दाख, तो ये हैं, बट ये स्पीशीज़ हमें हींग नहीं दे सकती। ठीक है, ये स्पीशीज़ हींग नहीं दे सकती, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब कंडीशंस हैं, CSIR ने पालमपुर में उसको दे हैव कल्टिवेटेड, राइट। नेक्स्ट, India to add 75 gigawatt of green power by financial year 2027. So this is a CRI SIL report के according. So in financial year 2024, financial year 24 में हमने ऐड किया था अराउंड 49 गीगावाट्स। ठीक है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 50% इंक्रीज़। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया की बात करें तो अक्टूबर 24 में इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इट रीच 201.45 गीगावाट्स। ठीक है, और ये है टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 452, अराउंड 452। ठीक है, तो उसका ऑलमोस्ट 46% ऑफ दैट। ठीक है, सो द रिन्यूएबल्स इज़ कंट्रीब्यूटिंग 46% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। और अगर हम सिर्फ रिन्यूएबल्स की बात करें तो सोलर में वी आर एट 90 गीगावाट्स, राइट। विंड 47, यस। लार्ज हाइड्रो की बात करें तो 46, स्मॉल हाइड्रो 5। ठीक है, सो 5 गीगावाट्स। एंड लास्टली बायोगैस, ये है हमारा रफली 11 गीगावाट्स। ठीक है, बाय 2030 500 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो दैट टारगेट आई एम अज्यूमिंग एवरीवन नोस, राइट। ब्लू एनडीसी चैलेंज, नेक्स्ट ब्लू एनडीसी चैलेंज। तो बेसिकली अभी क्या हुआ था, देयर इज़ अ यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग हेल्ड। तो दो कंट्रीज़ ने, फ्रांस एंड ब्राज़ील, दे हैव ब्रॉट दिस ब्लू एनडीसी चैलेंज। सो बेसिकली क्या है, वी ऑल नो दैट व्हाट आर एनडीसीज, नेशनली डिटरमिन्ड जो आपका क्लाइमेटिक प्लान्स हैं, राइट, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, COP आपका जो 21 था 2015 का। तो ये दोनों कंट्रीज़ बोल रही हैं कि ओशियन रिलेटेड क्लाइमेट मेजर्स दे शुड बी अ पार्ट ऑफ NDCs, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द NDCs। अब इन दोनों कंट्रीज़ को एंड दे हैव सेट अ टारगेट ऑफ COP 2030 जो आपका 2025 ब्राज़ील में होगा, COP 30 ब्राज़ील में होगा, बेलम में। उस तक आपको अपनी NDCs में ओशियन रिलेटेड क्लाइमेटिक मेजर्स को भी इंक्लूड करना है। एंड 6 अदर कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कीनिया, मैक्सिको, पलाओ, these all have also supported this initiative, and it is also being supported by other organizations like Ocean Conservancy, Ocean and Climate Platform, WWF Brazil. It has also endorsed this. So this you can mention in your climate change related answers, as well as a question can come from prelims point of view also. Now this is a scheme by the name of CROPIC initiative. So this CROPIC word, it stands for collection of real time observations and photo of crops. तो ये एक इनिशिएटिव है जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंडर ही। एंड इसके दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जो क्रॉप हेल्थ है उसको मॉनिटर करेगा, ठीक है, दूसरा क्रॉप लॉस असेसमेंट। ठीक है, क्रॉप लॉस असेसमेंट। अब क्रॉप लॉस असेसमेंट कर रहा है तो इससे पेमेंट्स में हेल्प मिलेगी,
जो फार्मर्स अफेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉप लॉस एक्सेट्रा, उनको पेमेंट में हेल्प मिलेगी. सो बेसिकली वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी, फोटो एनालिटिक मॉडल्स एक्सेट्रा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम क्रॉप्स को फोटोग्राफ करेंगे 4 से 5 बारी उनके एंटायर साइकिल में, और जो फोटोग्राफ्स हैं उनको फिर एनालाइज करेंगे टू सी देयर हेल्थ, टू सी द पोटेंशियल मिड सीजन लॉसेस. सो दिस स्टडी विल बी कैरिड आउट फॉर 2 सीजन्स इनिशियली. वन इज़ फॉर योर खरीफ 2025 एंड रबी, ठीक है, 25-26, एंड इट विल बी कंडक्टेड इन 50 डिस्ट्रिक्ट्स पर सीजन एंड कवरिंग अराउंड 3 crops, right? And it has been funded by the Fund for Innovation and Technology under your Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Okay. Next, as you all know that recently Israel conducted certain strikes, ठीक है, मिसाइल स्ट्राइक्स इन ईरान, ठीक है. तो जो ईरान में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ईरान में सर्टन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, दे हैव बीन एलिमिनेटेड एंड अदर लीडर्स दे हैव बीन एलिमिनेटेड. तो अभी ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, बट यू शुड कीप अ टैब ऑन दिस, ठीक है. पहली चीज़ कि इसका रीज़न क्या है. तो अभी रिसेंटली क्या ट्रिगर हुआ था कि IAEA जो आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, दे सेड दैट ईरान इज़ नॉन कंप्लाइंट विद NPT, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो, एंड ईरान इज़ द इज़राइल एलिजिस दैट कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान विल वन डे क्रिएट अ एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड जो इज़राइल का एग्जिस्टेंस है, सो दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क. तो इसलिए उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, एंड दे हैव सेड दैट देयर ओनली मोटिव इज़ जो ईरान का रेजीम है, वहाँ पर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको एलिमिनेट करना, ठीक है. अब ईरान अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो कंडक्टिंग न्यूक्लियर टॉक्स विद US फॉर अ डील, ठीक है. न्यूक्लियर डील के लिए टॉक्स भी चल रहे हैं. मस्कट, ओमान में टॉक्स होनी भी थी, राइट. सो अगर अब ये चलता रहा, ये टसल चलता रहा, सो दैट दोज टॉक्स विल गेट अफेक्टेड. वन सेकेंड, जो आपका ईरान है, इट मे ऑल्सो स्ट्राइक US बेसिस इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो US भी इन्वॉल्व हो जाएगा इस वॉर में. अब चाइना एंड रशिया, अगर चाइना एंड रशिया की बात करें हम, दे हैव सपोर्टेड ईरान, ठीक है. उन्होंने ये बोला है कि दीज स्ट्राइक्स बाय इज़राइल दे आर अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ईरान, ठीक है. तो उनको सपोर्ट किया है. सिमिलरली US ने किया है इज़राइल को, ठीक है. तो एस्केलेट होती है अगर सिचुएशन, सो दीज कंट्रीज़ विल टेक साइड्स, ठीक है. अब इंडिया, रशिया, चाइना, दे आर ऑल आर मेंबर्स ऑफ SCO. तो SCO ने भी स्टेटमेंट निकाला था, तो इंडिया हैड टू अब्सटेन. वाई इंडिया एब्सटेन? बिकॉज इज़राइल ने इंडिया का सपोर्ट किया था. अभी जब पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इज़राइल स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड अस. तो अब यहाँ पर इंडिया के लिए ये इशू हो जाता है कि इज़राइल को सपोर्ट करे, ठीक है. इज़राइल को सपोर्ट करता है तो US खुश होता है, और अगर ईरान को सपोर्ट करता है तो गल्फ़ कंट्रीज़ खुश होती हैं, ठीक है. तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू हो गया अगर हम स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन की बात करें, और इकोनॉमिक जो इम्प्लीकेशंस हैं. वी आर अ ऑयल डिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, ऑयल, एंड वी इम्पोर्ट, ठीक है. तो हमारे ऑयल इम्पोर्ट्स, दे आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड. सो जस्ट कीप अ टैब ऑन दिस सिचुएशन कि कैसे इवॉल्व होती है, कैसे एस्केलेट होती है. नाउ दिस एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश, जो अभी हमारा ये एक्सीडेंट हुआ था, राइट. तो यहाँ पर यू हैव टू नो सर्टन फैक्चुअल डिटेल्स, लाइक वन इज़ रिलेटेड टू दीज बोइंग एयरक्राफ्ट्स, राइट, ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट्स. जस्ट गो थ्रू द फैक्चुअल डिटेल्स. सेकेंड इज़ ब्लैक बॉक्स. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैक बॉक्स फ्रॉम योर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहली चीज़ तो जो नोट करने की है, दैट इट इज़ नॉट ब्लैक इन कलर. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इट इज़ ब्लैक इन कलर, जबकि ऐसा नहीं होता. इट इज़ ऑरेंज इन कलर, ठीक है, ताकि ये इजीली लोकेट हो सके. ये ऑरेंज कलर का होता है. ब्लैक इसलिए बोलते हैं ताकि जो ब्लैक का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि जो इन्फॉर्मेशन अंदर आ रही है, ठीक है, वो ये कैप्चर करे, उसको बाहर ना जाने दे,
ठीक है, यू मस्ट हैव राइट दिस द ब्लैक होल्स, ठीक है, जो जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता, राइट। तो it is the color is orange. Now there are two components in this. One is the FDR, other is the CVR, cockpit voice recorder, secondly flight data recorder. तो cockpit वाला आपका cockpit में जो भी conversation हो रहा है पायलट का, इंजन से रिलेटेड जो भी है वो चीज़ कैप्चर होती हैं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में बाकी इंफॉर्मेशन, एल्टीट्यूड, ठीक है, वो सब चीज़ें, स्पीड, एक्यूरेसी एक्सेट्रा वो होती हैं। एंड दिस वाज इन्वेंटेड इन 1950s बाय डॉक्टर वॉरेन। तो अभी क्या है, जो ये ब्लैक बॉक्स होता है ये एक स्पेशल मटेरियल टाइटेनियम का बना होता है, एंड इट कैन विथस्टैंड, अभी आपको पता ही होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर था इट क्रॉस्ड 1000 डिग्री सेल्सियस। स्टिल दिस black box it was recovered, so it can withstand a temperature of around 1100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, ठीक है। और ऐसे ही अगर ओशियन में कोई प्लेन क्रैश होता है तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वाटर का, इट कैन ऑल्सो विथस्टैंड दैट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसीलिए ऐसा बनाया गया होता है ताकि कोई भी हार्श कंडीशंस हो तो हम इसको रिकवर कर सकें, और इसमें से जो इन्फॉर्मेशन है टू नो अबाउट कि क्या कॉजेज़ हो सकती हैं क्रैश की, ताकि फ्यूचर में उनको रेक्टिफाई किया जाए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एंड इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट, जहाँ पर मिनिमम डैमेज की एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर कोई क्रैश भी हो तो वहाँ मिनिमल डैमेज होता है, तो वहाँ ये लोकेटेड होता है टेल गेट के पास। यस। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, वाई टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स आर द रिस्कीएस्ट फेस ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने देखा होगा मोस्टली जो क्रैशेस होते हैं, ठीक है, दिस अ बोइंग सेफ्टी रिपोर्ट ने ये एक डाटा दिया है दैट द मेजॉरिटी ऑफ द एविएशन एक्सीडेंट्स दे आर अकरिंग ड्यूरिंग द टेक ऑफ, दैट इज़ द फर्स्ट 3 मिनट्स ऑफ द फ्लाइट और टुवर्ड्स द लास्ट 8 मिनट्स, दैट इज़ द लैंडिंग टाइम, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको आप लेमन टर्म्स में ऐसे समझ सकते हो कि जब प्लेन हाइट पे क्रूज़ कर रहा होता है, 36,000 फीट पे क्रूज़ कर रहा होता है, तो पायलट के पास एम्पल टाइम होता है, ही हैज़ द लग्जरी ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है, कि वो अपने कोर्स को करेक्ट कर सके, राइट। अगर दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं तो एकदम से तो नहीं गिरेगा प्लेन, ठीक है, तो इट बिकम्स लाइक अ ग्लाइडर। तो ऐसी स्टेट में इट इज़, अगर एक एल्टीट्यूड वो 1 माइल का एल्टीट्यूड वो रिड्यूस हो रहा है तो 10 माइल्स वो आगे जा रहा है, तो 1 माइल ऑफ एल्टीट्यूड डिक्लाइन फॉर 10 माइल्स फॉरवर्ड। तो पायलट के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना कोर्स करेक्शन कर सके और कोई सेफ प्लेस पे वो लैंड करवा सके। बट अगर वो टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है तो ये जो लग्जरी है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। So there are number of environmental factors, situational factors that put stress on the aircraft during takeoff and landing, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स भी इसी में चीज़ में रहते हैं कि ठीक से, अभी जैसे ये कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि देयर वाज अ को पायलट एरर, ठीक है, अगर पायलट ने लैंडिंग गियर के बारे में बोला तो को पायलट ने फ्लैप्स का गियर को वो कर दिया। सो दीज आर द सर्टन थिंग्स विच कैन अकर मोर, दे हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग मोर ड्यूरिंग द इनिशियल एंड द लास्ट स्टेजेस ऑफ द फ्लाइट, राइट। So these are certain factual scientific details that you should know. Now gender, so this is the last topic, global gender gap report 2025. So this WEF, ठीक है। So according to this, India has ranked 131 out of 148 countries with a score of 64.1%, and its ranking has declined. So India has slipped 2 places from its position last year, ठीक है। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया में आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तो इन सब का इंडिया से ज़्यादा रैंक है। तो लास्ट की जो 3 कंट्री हैं, मालदीव्स, पाकिस्तान के साथ इंडिया की रैंकिंग है, राइट। एंड द टॉप 5 कंट्रीज एट ग्लोबल लेवल, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके, न्यूजीलैंड, ये सब हैं, राइट। नाउ व्हाट इज़ दिस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? सो बेसिकली ये असेस करता है कि कंट्रीज़ हाउ वेल दे आर क्लोजिंग दिस जेंडर रिलेटेड डिस्पैरिटीज़। तो 4 डायमेंशंस हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड एजुकेशनल अटेनमेंट।
third, health and survival, and fourth, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. तो इनके अराउंड ये आपका इंडेक्स करता है, 0 से 1 के बीच में स्कोर देता है. तो 1 इज़ फुल पैरिटी. ठीक है, तो इंडिया 0.641. ठीक है, रैंक 131. राइट. Now let's practice MCQ. And so the MCQ is related to this global gender gap report itself. So 4 statements are given. It is saying it is released by UNDP. So this is incorrect. WEF. So whenever you are solving an MCQ, try to eliminate the options. So B and D गए. ठीक है. The index ranks countries based on gender parity across 4 key dimensions. ये हमने देखा. तो 2 is correct. तो A can be the answer, C can be the answer. In 2025, India ranked among the top 100 countries in terms of educational attainment. Again wrong. So India's rank was more, 130 ke around. Bangladesh ranked higher than India in 2025 report. So 2 and 4, A would be the correct answer. ठीक है. So always in MCQs, try to eliminate the options rather than going for looking for the correct answer. So last one in this mains question we are discussing regarding the Iran-Israel conflict only. So the question says the Iran-Israel conflict has significant spillover effects on India's trade, energy security and inflation management. Examine the macroeconomic and strategic implications of the conflict on India. So here we are going to divide the answer again in the standard format, that is introduction, body and conclusion. So in the introduction you will be starting with the present context. So you will be highlighting the present context, that what is going on and what is India's stand. India का क्या stand है. So you can bring about the SEO angle that we discussed, right? Then in the body you will be starting by addressing the different subparts of the question. So you can start with energy security. ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी से शुरू करेंगे. सो इन एनर्जी सिक्योरिटी यू कैन ब्रिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंगल. ठीक है, कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 20 to 25% ऑफ द ग्लोबल ऑयल एंड द LNG फ्लोज. ठीक है, and India being the third largest importer of oil, so it can face rising crude prices, so that can also disrupt India's fiscal stability. उसके अलावा जो हम LNG करते हैं इम्पोर्ट कतर से, UAE से, so that it can also get affected. So this is energy security. Then related is inflation. ठीक है, तो इंडिया इज़ ऑयल डिपेंडेंट, इम्पोर्ट डिपेंडेंट. तो अगर ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा तो द क्रूड प्राइसेस दे विल शूट अप and that will affect our fuel imports, right? So also the RBI's present stance on the monetary policy. अभी क्या है present stance कि we are looking at monetary easing, so that can be reversed. ठीक है, so in then trade, next point, next bullet that you can highlight is trade. So trade disruptions can take place because India का lots of exports and import goes through this corridor. ठीक है, रेड सी, सुएज कैनाल कॉरिडोर. तो अपना इसमें क्या होगा, वॉइस टाइम इंक्रीज़ होगा, वॉइस टाइम विल इंक्रीज़. So obviously the freight cost will increase, the insurance cost will increase and so on. So trade angle. Next you can mention about the strategic implications. Strategic implications, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया इज़राइल वर्सेस ईरान किसके तरफ हो. ठीक है, तो दैट यू हैव टू हाईलाइट. प्लस जो इंडिया का 8 मिलियन प्लस, ठीक है, तो वर्कर्स दैट आर वर्किंग देयर इन द वेस्ट एशियन रीजन, जो हमें बहुत ज़्यादा रेमिटेंस भी भेजते हैं, सो दैट कैन गेट अफेक्टेड. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू विल बी हाईलाइटिंग इन द बॉडी. एंड फाइनली इन द कंक्लूजन यू कैन गिव अ वे फॉरवर्ड. ठीक है, वे फॉरवर्ड वहाँ पे यू कैन मेंशन एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन. सो इंडिया शुड फोकस ऑन एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन. सो दिस कैन बी वन पॉइंट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट कैन बी बूस्टिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स. तो इंडिया को अपने जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं उसको बूस्ट करना चाहिए. एंड लास्टली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी. डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी.
ठीक है. So this point you have to highlight. This is important point, diplomatic neutrality, and this, with this you can conclude your answer. So this is what I wanted to discuss in today's class. So in the next video we are going to take the week 3 current affairs.